السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقیب اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جسے ہر مشکل میں پکارا جاتا ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ پشاور میں عامر تہکال پر تشدد کا معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا۔ مظاہرین کا پریس کلب کے سامنے پولیس پر پتھراؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔ پشاور میں عامر تہکال پر تشدد کا مزید معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے۔ مظاہرین کا پریس کلب کے سامنے پولیس پر پتھراؤ کر گیا ہے۔ پشاور میں عامر تہکال پر تشدد کا مزید معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے۔ مظاہرین کا پریس کلب کے سامنے پولیس پر پتھراؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔ پشاور میں عامر تہکال پر تشدد کا مسئلہ مزید گمبھیر ہو گیا۔ صوبائی اسمبلی چوک پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا اور اسمبلی روڈ میدان جنگ اس وقت بنا ہوا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان شاہد، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا معاملہ کنٹرول کر لیا گیا؟ جی بالکل، دیکھیں عامر تہکال کی برہنہ ویڈیو آنے کے بعد پشاور کے جو شہری ہیں ان میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ گزشتہ روز جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد عامر تہکالی کے حق میں جو تھے وہ احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا تھا۔ جو لیڈرز ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی احتجاج کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ انصاف کی عدم فراہمی کے باعث جو ہے وہ سراپا احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی جو پشاور کے صوبائی اسمبلی روڈ ہے یہ مکمل طور پر میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ گزشتہ روز بھی فائرنگ کا تبادلہ یا آنسو گیس کے شیل مارے گئے تھے، مگر ایک بار پھر صوبائی اسمبلی جو تھی وہ میدان جنگ کے مناظر پیش کری تھی۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس کے خلاف جب نعرے بازی کی جا رہی تھی تو مشتعل افراد کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے پہلے لاٹھی چارج کیا گیا، اس کے بعد آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ مارے گئے، جس میں تقریباً 6 پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس میں پتھراؤ کے وجہ سے جو ہے وہ زخمی ہوئے، جبکہ ایک سچ ٹی وی کا جو کیمرہ مین ہے ارسلان وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ اسی طرح جو دیگر جو مشتعل افراد تھے جو احتجاج کر رہے تھے ان کی جانب سے بھی ایک شخص جو تھا وہ اسلحہ لے کر آیا ہوا تھا جس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جوابی کارروائی میں جو ہے ملزم جو فائرنگ کر رہا تھا شخص اس کو تو گرفتار کر لیا گیا، مگر پولیس کی جانب سے ابھی تک اس کا نام جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا۔ احتجاج کی وجہ سے صبح سے ہی جو خیبر روڈ ہے یا جو صدر جانے والا روڈ ہے وہ مکمل طور پر بند تھا۔ لوگوں کو جو تھی وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تاہم اب جو ہے روڈ مکمل طور پر کھول دیے گئے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو اس وقت بھی جو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ صوبائی اسمبلی روڈ پر موجود ہے۔ یہ روڈ جو ہے وہ صبح 10 بجے سے جو تھا بند ہوا تھا، مگر 2 بجے اس روڈ پر مکمل طور پر جو مظاہرین تھے ان کو یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب روڈ جو ٹریفک کے لیے ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو صدر جانے والا روڈ ہے اس کو بھی مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین جو ہیں جو گرفتار کیا گیا جو اسلحہ والا جو شخص تھا اس کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کی جائے گی کہ مظاہرہ پرامن مظاہرہ کرنا، پولیس کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، مگر جو احتجاج میں بدنظمی پیدا کی جائے گی تو اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائی بھی کی جائے گی۔ بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عدنان شاہد آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر کی یقین دہانیاں، کہتے ہیں عامر تہکال کے واقعے میں جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات میں تمام تر ذمہ داران کا تعین ہوگا، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ہم بیٹھے اس پہ وزیرانہ محمود خان صاحب کے زیر صدارت میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے چیف سیکرٹری، ہمارے ہوم سیکرٹری، آئی جی خیبر پختونخوا اور دیگر وزیر قانون ہم سب اس میں موجود تھے۔ اس میں یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم اس کی جوڈیشل انکوائری کریں گے۔ اس جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی ہم نے آج ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ لیٹر جاری کر دیا چیف جسٹس خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ کو، اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ ایک جج صاحب کو جو اس ایک رکنی وہ ہوگا تاکہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو اور اس کی جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ تو اس لیے میں اس موقع پہ
यहां पे ये जरूर कहूंगा कि ये चंद एहलकारों की जो दरिंदगी है उसके लिए हमने ये स्टेप्स उठाए। अगर इसके अलावा पाकिस्तान के आईन और कानून में इससे सख्त स्टेप्स हो सकते हैं तो मुझे कोई बताए, वो हम लेने के लिए तैयार है। जो हमने लिए कानून और आईन के मुताबिक, इससे जुडिशियल कमीशन से जो हमने इसके लिए लेटर लिख दिया, इससे बड़ा स्टेप्स और कोई नहीं हो सकता। रावलपिंडी में वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बनते हम बड़े सोम और सलाद के पाबंद हैं और नौजवान बच्चे मर रहे हैं और उसका टीका जो है उसको 4-4 गुना कीमत पे बेचते हैं। ये हैं हम मुसलमान। शर्म आनी चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए। नहीं खत्म करेंगे, जब 9 दिन बाद जाएंगे बहाल कर देंगे। जिस दिन जाएंगे बहाल कर देंगे। बस जब आदमी किसी बीमारी और मुसीबत में आता है ना तो लोग फायदा उठाते हैं। अब ये देखें, इन्होंने स्ट्राइक की बातें की वहां। अगर शेख रशीद ना होता तो इनके बच्चों को कौन नौकरी देता? कौन देता है? एक 10 रुपया बताया किसी ने इनसे किसी से लिया है। सन कोटे से भी इन्होंने कोटा लिया है, ओपन मेरिट पे भी लिया है, मेरिट पे भी लिया, और शर्म नहीं आती लोगों को। बातें करते हैं बाद में। 1 लाख लोगों को रोजगार इंशाअल्लाह मरने से जिंदगी का पता नहीं है इसी साल। और कुल्लूवाल पिंडी, रावलपिंडी, लाहौर 2 घंटे का सफर हो जाएगा इसी साल इंशाअल्लाह। डबल ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं, मेहरबान सारा कराची टू पेशावर। देखें, मैं मुफ्त मशवरा नहीं देता, मैं नया बीमारी से उठा हूँ। सो अभी 10 दिन बाद मशवरा दूंगा। कहीं नहीं जाता अख्तर मैंगल शैंगल, मैं बहुत सारे मैंगलों को जानता हूँ। सारी जिंदगी मैंने यही काम किया और देखा और सुना है। इमरान खान जो है वो वक्त की जरूरत है। पाक फौज के अदारे जमहूरियत के लिए, सरबुलंदी के लिए इस सिस्टम के साथ खड़े हैं। वो पागल बेवकूफ हैं जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई ऐसी मिसाल नहीं, टिड्डी दिल में देखें फौज खड़ी है। कोई ऐसी मिसाल नहीं, सिलाब की तैयारी में फौज खड़ी है। हॉस्पिटलों में जाके देखें फौज बेचारी खड़ी है। आप जाके देखें कि हर जगह फौज खड़ी है, इसलिए कि ये पाकिस्तान आगे बढ़े। और जो पाकिस्तान को आगे ले जाने का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान की फौज का दुश्मन है, वो जलील और ख्वार होगा। हमारी एक अजीम फौज है और हमारा एक अजीम सिपह सलार है, पाकिस्तान आगे जाएगा। शेख साहब, हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये है कि 1 लाख नौकरियां जो है मेरिट पे जा रहे हैं। ये कहना कि यूनियन का 50% कोटा है वो चाइनीज से नहीं पास हो रहा, पहले बता रहे हैं। और 2-2, 3-3 अपने घरों में क्वार्टर लाट करके और 2-2, 3-3 लड़कों को नौकरियां करा के ये करना कि भाई सो मेरिट इज गोइंग टू। नया सिस्टम भी आ सकता है। रेलवे का सारा निजाम बदल देंगे, सारा निजाम बदल देंगे रेलवे का, कि ये लोग जो कब्जा ग्रुप आके बढ़ जाते हैं अंदर और रिटायर होते हैं। और सो एक नया निजाम रेलवे में लाएंगे, मेरिट का निजाम, और 1 लाख नौकरियों का मैं ऐलान कर रहा हूँ। मैंने तजवीज़ दी है, बढ़नी चाहिए, मैं बढ़ा तो नहीं सकता रेलवे का। बात करेंगे आप? जरूर करूँगा। ये बताइएगा कि पाए जाते हैं हमारी आवाम में, और जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें की जाती है जैसे कि सरकार की तरफ से भी। बाबा छोड़ो सरकार, आप ये बताइएगा कि आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को सब कुछ पता क्या करना चाहिए। मेरी तरफ देखे और इबरत हासिल करें, अल्लाह से मदद मांगे। मेरी तरफ देखें आप, और ये देखें कि मुझ पे 4 खुदकुश हमले हुए, मैंने कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। 21 दिन मैं अस्पताल में रहा हूँ, मेरा तिया पांचा हिल गया। हुकूमती सफ़ों में इख्तलाफात और सरदार अख्तर मैंगल के हुकूमत से अलहदा होने के बाद अपोजिशन मुतहरिक हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी इत्तेफाक किया है।
सरदार अख्तर मेंगल के हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने के बाद अपोजिशन मुतहरिक हो गई। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता किया। सरदार अख्तर मेंगल ने JUI की बलोचिस्तान मसाइल बारे APC में भी शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की एक कमेटी बना दी है जो अपोजिशन की तमाम जमातों से राब्ता कर रही है और मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नजर APC बुलाने बारे बातचीत की जा रही है। इसी तसलसल में बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से उनकी अपनी सेहत और मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ में बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने और अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी इत्तफाक किया गया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 साल थी। मुनव्वर हसन 2009 में भारतीय अक्सरियत से जो है वो जमात इस्लामी के अमीर चौथे अमीर मुकर्रर हुए और सैयद मुनव्वर हसन कुछ अरसे से अलील थे और कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। तबीयत बिगड़ने पर खाली के हकीकी से जा मिले। सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी ने सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खुदावंद मुताल मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र दे। सैयद मुनव्वर हसन ने सियासत का आगाज जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया। हालात जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। हसन 2009 में भारी अक्सरियत से जमात इस्लामी के चौथे अमीर मुकर्रर हुए। 2014 तक बतौर जमात के अमीर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। 2013 में उनके एक मुतनाज़ा बयान का मीडिया पर खूब शोर मचा जिसकी वजह से दूसरी बार जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब न हो सके। पार्टी के कई रहनुमाओं ने भी उनके बयान का दिफा करने से गुरेज किया। मुनव्वर हसन जनवरी 1999 से नवंबर 1991 तक जमात इस्लामी कराची के अमीर के मनसब पर भी फायज रहे। 1992 में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर जिम्मेदारियां निभाईं। सैयद मुनव्वर हसन की जोहद मुसलसल की दास्तान निस्फ सदी पर फैली हुई है। सैयद मुनव्वर हसन ने अगस्त 1941 को दिल्ली में सैयद इखलाक हुसैन के यहाँ आंख खोली। वालिद टीचर थे जबकि उनकी वालदा बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती रहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद वालिदैन के हमरा पहले दिल्ली से लाहौर फिर लाहौर से कराची जा बसे। मुनव्वर हसन ने इब्तदाई तालीम जेकब लाइन के एक स्कूल से हासिल की। जामिया कराची से इमरानियात और इस्लामियात में MA किया। मुनव्वर हसन ने सियासत का आगाज दौरे तालिब इल्मी से किया। उन्होंने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तलबा सियासत का आगाज किया। 1959 में इसी तंजीम के सदर भी रहे। कुछ अरसे बाद ही सैयद अबुल आला मदूदी मरहूम के इनकलाब आफरीन लिटरेचर से मुतासिर होकर जून 1960 में इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हो गए। 1962 में इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची के नाजिम, 1963 में कराची के नाजिम रहे। 1964 में उन्हें इस्लामी जमीयत तलबा का नाजिम आला मुंतखब किया गया। मुसलसल 3 मरतबा नाजिम आला मुंतखब होने का एजाज पाया। 1968 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। कराची के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और नायब अमीर की हैसियत से भी अपने फराइज सर अंजाम दिए। 1977 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जमीलुद्दीन आली को शिकस्त देकर ऐवान तक जा पहुंचे। सैयद मुनव्वर हसन ने 1977 में चलाई जाने वाली तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा को कराची में मुनज़्ज़म किया। वो इस्लामिक रिसर्च एकेडमी कराची के डायरेक्टर भी रहे। उनकी निगरानी में इस एकेडमी में 70 से ज्यादा इल्मी किताबें शाये हुई। उन्होंने इस्लामिक रिसर्च एकेडमी से शाये होने वाले जरीदे दी क्राइटेरियन द यूनिवर्सल मैसेज की इदारत भी की। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म 6 जुलाई को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। देखिए असलम खोखर की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने की। आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। फारूक एच नाइक ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ अली जरदारी के लिए सफर करना मुश्किल है, उनकी उम्र ज्यादा है, इसलिए खतरा है उन्हें कोरोना वायरस न हो जाए। जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत पेश हुए थे जिसके बाद उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। जज आजम खान ने फारूक एच नाइक से कहा कि अभी भी पेश हो रहे हैं क्या? आपको जिंदगी प्यारी नहीं? जब आप पेश हो रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी को भी बुला लें। ज्यादा मसला है तो आसिफ अली जरदारी को अलग बुलाकर उनसे दस्तखत ले लेते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आसिफ अली जरदारी अस्पताल में हैं, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी कराची में अपने घर में हैं। पूरी दुनिया में गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दलाल के बाद अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर भी वीडियो लिंक से फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए नैब को आसिफ अली जरदारी समेत कराची में मौजूद तमाम मुल्ज़िमान के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن میں مصروف ہونے کے باعث لیگی رہنما خواجہ آصف آج نیب میں پیش نہ ہوئے. اپنے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروا دیا. کہتے ہیں ہمیشہ اداروں کا احترام کیا, آئندہ دی گئی تاریخ پر لازمی پیش ہوگا. رپورٹ کریں گے نبیل نقوی. ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف آج نیب میں پیش نہیں ہوئے. نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا انتہائی ضروری ہے. نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے لیگی رہنما کو دوبارہ 3 جولائی کو طلب کر لیا. خواجہ آصف کی جگہ ان کے وکیل چودھری نجم الحسن نیب آفس پہنچے اور جواب جمع کروایا. خواجہ آصف نے جواب میں موقف اپنایا کہ نیب کو تمام مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دی گئی ہیں. بجٹ سیشن میں مصروفیات کے باعث نیب میں پیش نہیں ہو سکتا. نیب نے تمام مطلوبہ دستاویزات رکھ لی ہیں. اداروں کا احترام ہمیشہ کیا. بجٹ سیشن کے بعد آئندہ دی گئی تاریخ پر لازمی پیش ہوں گا. نیب کی جانب سے سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف پر الزام لگایا گیا کہ خواجہ آصف نے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں موجودہ زمین سے زیادہ زمین فروخت کی. نیب ذرائع کے مطابق اس کیس میں خواجہ آصف کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں. نبیل نقوی, سچ نیوز, لاہور. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی چینی یوٹیلیٹی سٹور سے غائب ہونا شروع ہو گئی ہے, جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے حوالے سے جانتے ہیں شہزادہ معین سے. جی شہزادہ معین, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیں شہر قائد کے اندر جو ہے ملک بھر کی طرح جس طرح چینی کا بحران پایا گیا ہے, اس طرح جو ہے شہر قائد کے مختلف جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر بھی چینی کا جو ہے بحران پایا جا رہا ہے, جس سے شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس کے باعث جو ہے شہری در بدر جو ہے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ہے دھکے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ اگر بات کریں یوٹیلیٹی سٹورز کی کراچی کے اندر, تو کراچی کے جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹور ہیں پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ آٹے کا بحران پایا گیا اور اب جو ہے چینی کا بحران پایا جا رہا ہے, جس سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ جی, کیا کہیں گے؟ چینی کا بحران بہت زیادہ جو ہے اب پایا جا رہا ہے, تو کیسا دیکھتے ہیں؟ ملک میں پہلے آٹے کا بحران پایا گیا, اب چینی کا بحران پایا جا رہا ہے, تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اسے؟ بالکل بھائی, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت بلاک 11 گلشن اقبال یوٹیلیٹی سٹور پہ میں آیا ہوں. اس سے پہلے 3-4 اور اسٹوروں پر بھی گیا ہوں, تو چینی وہاں نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بے شک ہم شوگر پیشنٹ ہیں, مگر اپنے بچوں کو تو کچھ میٹھا کھلائیں گے ہی نا. تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے, تو بچے بولتے ہیں باہر کی چیزیں, گلا وغیرہ خراب ہو جائے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں چلو گھر میں ہی کچھ میٹھا بنا کے, کوئی کھیر وغیرہ, کسٹرڈ وغیرہ, اس کے لیے چینی ضروری ہے. پھر آم کا سیزن ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں چینی استعمال ہوتی ہے. اب چینی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ ایسی کیسی مافیا ہے کہ جب کہ بولیں کہ ہمارے ملک میں ہر چیز موجود ہے, گنا بھی ہے, ہر چیز ہے, پھر چینی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی پیکنگ میں اتنا ٹائم بولیں لگایا جا رہا ہے. آخر کب ہماری جان چھوٹے گی؟ رات کو لائٹ نہیں ہے, صبح کو آؤ تو یہاں پر چینی نہیں ہے. تو کبھی آٹے کا بحران, کبھی چینی کا بحران, کبھی کے الیکٹرک کا. تو یہ مافیا سے ہماری جان چھڑوائی جائے. کراچی والوں کو جینے دو, مہربانی کرو, آپ کی بڑی مہربانی. کم از کم یہ چینی, آٹا اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں, کے الیکٹرک ہو گئی, تو یہ آپ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی کہ آپ حکام والا سے میں گزارش کرتا ہوں فی الفور اس کا نوٹس لیں اور یہ مافیا ہماری جان چھڑوائیں, تاکہ ہمیں صحیح وقت میں صحیح چیزیں مل سکیں. جی بالکل, شہری کا کہنا ہے کہ ہر جگہ پہ مافیا کا راج ہے. پچھلے دنوں جس طرح آٹے کا پہ جو ہے بحران پایا گیا, اسی طرح اس وقت جو ہے شہر قائد کے اندر جو ہے چینی کا بحران بھی پایا جا رہا ہے, جس سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ خاص کر ان کے لیے پریشانی کے باعث جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے کراچی کے اندر جو ہے ان کو تکلیف دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ان کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہو رہی ہے, جس کے باعث جو ہے ان کو بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. جبکہ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف جو مافیا ہے وہ راج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی بہت شکریہ شہزادہ معین. لاہور میں چینی کی قلت پیدا ہو گئی, یوٹیلیٹی سٹور سمیت کریانہ شاپس پر چینی دستیاب نہیں ہے. مزید جانیں گے اجلال حیدر سے. جی اجلال. لاہور میں چینی کی قلت پیدا ہو گئی, یوٹیلیٹی سٹور سمیت کریانہ شاپس پر چینی دستیاب نہیں ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے اجلال حیدر سے. جی اجلال بتائیے گا. گجرانوالہ میں پیٹرول کا بحران تھمنے کا نام نہیں لے رہا. پیٹرول کے حصول کے لیے شہری ذلیل و خوار ہو گئے ہیں, مگر انتظامیہ پیٹرول کے بحران ختم نہ کر سکی.
ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली इकबाल पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अली इकबाल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आटे और चीनी के बहरान के बाद पेट्रोल के बहरान ने जो सारे उठा लिया है। 26 रोज गुजरने के बावजूद गुजरावाला के जो बेसिक पेट्रोल पंप है वो बंद है। मैं इस वक्त एक पंप पे मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये पंप को जो है बोर्ड और बैरियर लगा के बंद कर दिया गया। शहर में जो है चंद एक पेट्रोल पंप खुले हैं, वो भी पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। अपनी बारी में इंतजार करने के बाद जब उनकी बारी आती है तो मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपये, जबकि गाड़ियों के लिए 500 रुपये का तेल मिलता है। हमारे साथ कोई शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको पेट्रोल के रसूल के लिए क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमें पेट्रोल बड़ी मुश्किल मिलता है, जब मिले तो हमें गाड़ियाँ खड़े और देने 1 घंटा लग जाता है, और घंटे के बाद जब पेट्रोल डालने लगता कहते हैं कितने का, मैं 100 रुपये का डालूंगा, इससे बाद नहीं ज़्यादा। ये गुजरात में माफिया बैठी हुई है, हुकूमत को चाहिए कि इन माफिया से हमारा छुटकारा अदा करे, हमें पेट्रोल सस्ता और सस्ता दे। हमें कोशिश है कि हम आवाम का साथ हम भी देंगे, हुकूमत का साथ, लेकिन हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी काफ़ी गम गुस्से में पाए जा रहे थे। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो पेट्रोल माफिया है इनको लगाम डाले। दूसरी जानिब ज़िली इंतजामिया का कहना है कि शहर भर में ये जो मसनूई ज़हीरा अंदोज़ी चल रही है, पेट्रोल की किल्लत जो बनाई गई है, इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई की जा रही है और जल्द इस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अली इकबाल। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत ने आवाम के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स वालों की परेशानी में भी इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे आशिक कुरैशी से। जी आशिक। नवाबशाह शहर के शहदादपुर रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर मौजूद हूँ, जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर में अशिया खुर्दो नोश की तमाम तर अशिया जो हैं मौजूद हैं, सिवाय आटे और चीनी के। आटे और चीनी की किल्लत क्यों कर है और ये कब से है? हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये किल्लत कब से है। तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन हो गए हैं, तकरीबन चीनी और आटा जो है वो हमारे पास सप्लाई नहीं हुआ है। पीछे से ही सप्लाई नहीं आ रही है, उस वजह से बस जैसे ही 1-2 दिन में सप्लाई शुरू हो जाएगी तो बिला तफरीक जो भी होंगे सबको जो है बराबर सप्लाई कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो आटे की कीमत है और चीनी की कीमत है वो क्या चला रहे हैं? आटा 10 किलो का बैग 400 रुपये में मौजूद होता है हमारे पास, और चीनी 68 रुपये किलो होती है। उसकी मुख्तलिफ 2 किलो की और 5 किलो की पैकिंग आती है। जैसा कि आटे और चीनी की किल्लत से शहरी भी जो है परेशानी से 2-4 हैं, क्योंकि उनको आटा और चीनी जो है वक्त पर नहीं मिलता, जिसकी वजह पर उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया आशिक कुरैशी। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। पुलिस की जानिब से गुलबर्ग, फैसल टाउन समेत मुतादिद इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जैन, बताएगा कौन कौन से रास्तों को सील किया गया है? जी बिल्कुल, 7 सेलेक्टेड एरियाज हैं जिनको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है, जिनमें फैसल टाउन है, गुलबर्ग है, गार्डन टाउन है, इसके अलावा गुलशन, रावी, अंदरून लाहौर और इसके अलावा DH जो है उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मुकम्मल तौर पे बैरियर लगा के जो है वो दाखिली रास्तों को बंद किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से और जो है वो मुकम्मल तौर पे ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि जो लॉकडाउन है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो सड़कें आती हैं, जो शाहराहें आती हैं, उस जानिब जो इलाके सील हैं, उन इलाकों पे भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वहाँ पे बैरियर लगाए गए हैं, क्योंकि आमदोरफ्त तो है वहाँ पे ट्रैफिक की, लेकिन सख्ती की जा रही है, बगैर मास्क चलान किए जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स मौजूद हैं जो बगैर मास्क चलान कर रहे हैं ड्राइवर्स के, और इसके साथ साथ उनको मास्क की तंबीह की जा रही है। CCPO लाहौर ने आज भी जो है दूसरे रोज़ भी तमाम सिलेक्टेड एरियाज़ का दौरा किया है और आवाम से अपील की है कि वो पुलिस के साथ जो है वो हुस्न सलूक से पेश आए, बहस व तकरार ना करें और कोरोना वायरस की हसासियत को समझते हुए गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। जबकि दूसरी जानिब पुलिस को भी मुकम्मल तौर पर ये अहकाम जारी किए गए कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वाले लोगों अफराद के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जैन नकवी। कौमी असम्बली के 27 में से 14 अरकान कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए।
कोरोना से मुतासर होने वाले मेंबरान असेंबली में से एहसन इकबाल, आबिद डोगर, मरियम औरंगजेब, शेख रशीद अहमद, शाहिदा अख्तर अली, उसामा कादरी, जहूर हुसैन कुरैशी, वजी अकरम, जय प्रकाश, साजिद तूरी, ताहिरा औरंगजेब, नुजहत पठान, शहरयार आफरीदी और डॉक्टर रमेश कुमार सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना से मुतासर होने वाले अराकीन असेंबली की मजमूई तादाद 27 है, जिनमें से अब तक शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, फर्रुख हबीब, अयाज सादिक, राय मुर्तजा अली, राहत अमानुल्लाह, हाजी इम्तियाज अहमद, अमीनुल हक, जावेद हसनैन शाह, उस्मान तरकई, मौलाना अनवर, मलिक रियाज जखड़ और आलमगीर खान अभी तक सेहतयाब नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कौमी एयरलाइंस के जाली पायलट्स का चर्चा आलमी मीडिया तक भी पहुंच गया। CNN ने जाली पायलट्स की भर्ती को एयरलाइन की तारीख में मुज़हका खेज वाक़या करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने वजीर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ऐवान में वजीर हवाबाजी ने कौमी एयरलाइंस में पायलट्स के जाली लाइसेंस का एतराफ किया तो आलमी मीडिया पर भी बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। CNN ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के हुकूमती वजीर की जानिब से ये बात तस्लीम करना कि पायलट्स जाली हैं, ये हवाबाजी की तारीख में निहायत मुज़हका खेज है। It's not. It is not. Let me say that clearly. It is not prevalent elsewhere. This is the most extraordinary story in aviation. Dubious licenses, fake licenses is how the investigators put it in the Pakistan air crash investigation. पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने आलमी मीडिया की रिपोर्ट को हिस्सा बनाते हुए ट्वीट किया कि वजीर हवाबाजी मुस्ताफी होने की बजाय हमें नई कहानियां सुना रहे हैं। वजीर का पायलट्स के जाली लाइसेंस का बयान आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की जग हसाई का बाइस बना। ब्रेकिंग एविएशन के ट्विटर अकाउंट से ये खबर भी चला दी गई कि कराची हादसे के बाद कौमी एयरलाइन के 150 जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी जाली पायलट्स पर खूब लफाजी की। एक सारिफ ने लिखा कि दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तानी पायलट्स की धूम है। जहाज देखकर दीगर पायलट्स जहाज लेकर पतली गली से निकल जाएंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। लाख वादे हुए, बहुत दिलासे दिए गए, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। कोरोना से बचने की खातिर घरों में महसूर शहरी बिजली के तातुल के बायस दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, हर बार की तरह गर्मी आते ही बिजली ने रुखसत ले ली। इधर गर्मी की शिद्दत इंतहा पर पहुंची, उधर बिजली का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद बिजली तकसीम कार कंपनीज ने रविश न बदली। शहरी शिकायत करें तो कहा जाता है कि भाई कहाँ है लोड शेडिंग, हमारी जानिब से तो भरपूर सप्लाई जारी है। मुल्क भर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बिला तातुल की जा रही है, जिसके सबब घरों में कोरोना के बायस शहरियों का दम घुटने लगा है। बच्चे और बड़े दोनों ही बेहाल हैं, यहाँ तक कि जनरेटर्स ने भी काम छोड़ दिया है। मगर अरबाब इख्तियार के बुलंद ऐवानों से गरीब शहर की आवाज है कि टकरा के वापस आ जाती है। सक्खर बैराज में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से निचले दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। मजीद जानते हैं औरंगजेब मलिक की इस रिपोर्ट में। सक्खर बैराज पर पानी की सतह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से निचले दर्जे का सैलाब मतवक्का है। गुड्डू बैराज पानी की आमद 169,000 क्यूसिक है और अखराज 1,21,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि सक्खर बैराज पर आमद 1,10,000 क्यूसिक और अखराज 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जो कोटरी बैराज को दिया जा रहा है। बैराज कंट्रोलर अब्दुल अजीज का कहना है कि इस वक्त गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 1,59,000 क्यूसिक्स है, जबकि अखराज 1,21,000 है। सक्खर बैराज पर जो पानी की आमद है 1,10,000 क्यूसिक्स है और कोटरी बैराज के लिए यहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो 54,000 क्यूसिक्स है। पिछले साल से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इस साल पानी की सूरत हाल बेहतर है। उम्मीद की जाती है कि पानी की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी और वैसे भी जुलाई और अगस्त में फ्लड की सूरत हाल बनती है। सक्खर बैराज की जो तमाम नहरें हैं वो इस वक्त जो है अपना डिमांड के मुताबिक पानी ड्रा कर रही हैं, ले रही हैं और कोटड़ी बैराज पर भी पानी जो है इस वक्त उधर आमद जो है वो 41,000 क्यूसिक्स है और उसका अखराज जो है 1,500 क्यूसिक्स है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सूरत हाल बेहतर है। दरियाए सिंध में 7 बड़ी नहरें निकलती हैं। दादू कैनाल, रेस कैनाल, केरथर कैनाल, रोड़ी कैनाल, नारा कैनाल, खैरपुर ईस्ट और वेस्ट शामिल है। 7 नहरों को 55,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज सक्खर।
ملتان کے علاقہ طارق آباد کے رہائشی عرصے دراز سے گھروں کے بیچوں بیچ سیوریج کے پانی سے بنے جوہر سے شدید اذیت کا شکار ہیں۔ جوہر کا پانی کئی گھروں کی بنیادیں کمزور کر چکا ہے، جبکہ ڈینگی سمیت پیٹ کے وبائی امراض علاقے میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے احمد کاشف۔ ملتان کے MNA عامر ڈوگر کے حلقہ طارق آباد کھرل چوک کے عوام عرصہ دراز گزر جانے کے بعد بھی سیوریج کے پانی سے بنے اس گندے جوہر سے شدید اذیت کا شکار ہیں۔ علاقہ مکینوں نے واسا افسران کے در کھٹکھٹائے، MNA سے کی گئی منتیں ترلے، کچھ کام نہ آیا۔ غریب بستی کے غریب مکینوں کی زندگی اس گندے جوہر سے اٹھتے تعفن اور بدبو سے اجیرن ہو چکی ہے۔ واسا کے اعلیٰ افسران سے کی گئی درخواستیں، عرضیاں اور واسطے سب بے سود اور رائیگاں ہو گئے، جبکہ ضرورت تو ان افسران کے خلاف کارروائی کی تھی کہ جو اس ساری افسوسناک صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ ساڈا آج تک سال تھی گئی نہیں کھلتا پیا، اسا بڑے پریشان ہیں۔ یہ مین لائن طارق آباد تھی گئی، چلن والی تھی گئی، کوئی صفائی نہیں تھی پئی، کوئی شے نہیں۔ ات ڈگنو پانی ہے، یہ کھرل چوک دے پچھو پانی کھڑا تھی، لنگن دے رستے کا نہیں۔ مہربانی کیتی ونجے کام کرایا ونجے، واسا کو ساری اپیل ہے۔ اس غلیظ جوہر کا پانی مکینوں کے گھروں کی بنیادیں ہلا رہا ہے اور ڈینگی سمیت دیگر بیماریوں نے تو گویا یہاں کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ ہر دوسرا شخص بیمار پڑ رہا ہے۔ لوگ کھوئیاں مروے نے پانی گندے بھی چلو نکل دیں، بندے بیمار تھی نے، ایک بندے کو آدھے کوئی سننا نہیں، دفتر بھاج کے کھڑو گئے، کوئی نہیں سننا، کوئی آندے تھے اس تو مطلب ہے جو کدے کدے کوئی آیا نہ بچ ہے کہ یہ ٹپے کڑے نکلتے تھے ہو گئے۔ یہاں تالاب سا بن گیا اور اس میں مچھروں کا بہت زیادہ، ڈینگی کا بہت زیادہ خطرہ ہے، جس وجہ سے ہمارے بچے باہر کھیل نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مرے کو مارے شاہ مدار کے مستاق بجلی کی تاریں اسی گندگی کے جوہر سے چند انچ ہی اوپر سے گزر رہی ہیں، جو کسی بھی وقت اندھوناک حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ علاقہ مکین واسا افسران سمیت اعلیٰ حکام سے داد رسی کے منتظر ہیں۔ طارق آباد میں عرصہ دراز سے سیوریج کا یہ کھڑا پانی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ اہل علاقہ کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس جگہ کو صاف کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین رمضان علی کے ساتھ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ صحرائے چولستان قریب ہونے کی وجہ سے صادق آباد میں گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شاہراہوں پر سردائی کے سٹالز لگ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آصف آوان کی اس رپورٹ میں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی صادق آباد کی مختلف شاہراہوں پر سردائی کے اسٹال سج گئے۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شہری دوران سفر سردائی کا استعمال کرنے لگے۔ آج کل جتنی گرمی ہے اس سے ہیٹ سٹروک کا بھی جو ہے خطرہ ہے۔ صادق آباد میں گرمی روہی کے پاس ہونے کی وجہ سے 49 سینٹی گریڈ تک گئی ہے، تو ایسے ماحول میں جو ہے یہ جگہ جگہ سردائی کے یہ جو اسٹال لگے ہوئے ہیں یہ شہریوں کے لیے بہت موزوں ہیں۔ اس سے گرمی کا جو ہے یہ شدت جو آپ کے اندر بڑھ چکی ہوتی ہے ٹریولنگ کرتے ہوئے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بادام، چاروں مغز، خسخاس، سونف، زیرہ اور کالی مرچ سے تیار کی گئی سردائی پینے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، تو وہیں شدید گرمی میں جسم کو راحت اور سکون بھی ملتا ہے۔ پیاز، بادام، کالی مرچ، الائچی اور زیرہ یہ ڈال کے کوٹا تیار ہوتا ہے، گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور ہمارا بھی کام اچھا چل رہا ہے۔ مسئلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دور جدید میں سردائی بنانے کا کچھ کام مشینوں نے لے لیا، جس سے تیز رفتار اور زیادہ مقدار میں سردائی تیار کی جاتی ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر لگے ان اسٹال سے شہری سردائی پی کر خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ بادام، چاروں مغز اور خسخاس ڈال کر سردائی کو تیار کیا جاتا ہے، جس سے گرمی کی شدت کو کم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف آوان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ جان پر بنی تو بھارت نے 72 سالہ پالیسی ہی بدل ڈالی۔ اب بھارت نے پاکستان کی جگہ چین کو نمبر 1 دشمن قرار دے دیا ہے۔ جنگ زدہ یمن پر سعودی اتحادی افواج کے حملے جاری ہیں۔ ایک ہفتے میں 400 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 5 سال سے جنگ کے شعلوں میں جھلستا یمن، ہر طرف پھیلی تباہی اور بربادی کے مناظر جارح فورسز کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی قیامت کی گواہی دے رہے ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن پر محض ایک ہفتے میں 400 حملے کیے۔ ترجمان یمنی فوج یحییٰ السری نے بتایا کہ حملوں میں معارب
आज जौफ, इमरान, सादा, हुज्जा और अलबैजा के इलाकों को निशाना बनाया गया। सऊदी अफवाज ने मार्च 2015 में अमेरिका और दीगर ममालिक की हिमायत से यमन पर हमला किया। जंग में हजारों यमनी शहीद और जख्मी हो चुके, लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। निजाम जिंदगी धर्म भरम होने के बायस अशियाए खुरोनोश और तिबी साजो सामान की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। ताकत के बेदरेग इस्तेमाल और मुहासरे के बावजूद सऊदी इत्तेहाद मकासद के हसूल में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कोरोना प्लेयर से पीसीबी का नारवा सलूक, 2 दिन तक फोन नहीं सुने गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि प्लेयर से पीसीबी का नारवा सलूक, 2 दिन तक फोन नहीं सुने गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों से बुरा रवैया, दुरुस्त गाइडलाइंस दें, नामुनासिब जवाब दिया गया। क्रिकेटर्स पीसीबी के रवैये से नाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों से बुरा रवैया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों से बुरा रवैया सामने आया है। दुरुस्त गाइडलाइंस दें, नामुनासिब जवाब। क्रिकेटर्स पीसीबी के रवैये से नाला। 10 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। बोर्ड ने खबर तक नहीं ली। एहतियाती तदाबीर भी नहीं बताई गई, ऐसा कहा गया है मुतासरा क्रिकेटर्स की जानिब से। कोरोना के दौर में प्लेयर से पीसीबी का नारवा सलूक, 2 दिन तक फोन नहीं सुने गए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए लाइन पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इमरान उस्मानी। बहुत शुक्रिया इमरान उस्मानी साहब वक्त देने के लिए। जी बताइएगा, पीसीबी का नारवा सलूक, प्लेयर्स की शिकायत सामने आ रही है। जी बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी तस्दीक आपसे थोड़ी देर कबल साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने भी कर दी है। उन्होंने बताया है कि कुछ प्लेयर्स ने उनको भी फोन किए हैं और कुछ निजी महफिलों में और कुछ दोस्तों को फोन करके वो उनको ये कहते रहे हैं कि जिस वक्त हमारे कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए तो पीसीबी ने उसके बाद हमें ऐसे छोड़ दिया जैसे हम यारो मददगार हैं। आखिर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हैं, कौमी हीरो हैं, हमारी लुक आफ्टर करनी चाहिए थी। पीसीबी को चाहिए था कि वो कौमी अकेडमी में बुलाकर हमें बेहतर से बेहतर खुराक देता और हमें बताता कि कौन सी हमें जो है ना अब इसमें जो है ना वर्जिश करनी है या हल्की फुल्की करनी है या एहतियात करनी है। उसके बजाय क्रिकेटर्स ने ये बताया कि वो मेडिकल स्टाफ को 2 दिन तक फोन करते रहे ये जानने के लिए कि वो हमें गाइडलाइन दें कि अब हम आगे क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो पीसीबी के मेडिकल स्टाफ ने 2 दिन तक फोन नहीं सुने और फोन सुनने के बाद उनको सही रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज जैसे सीनियर खिलाड़ी शदीद नाराज हो गए, जबकि जूनियर खिलाड़ियों में भी अदम तहफ्फुज़ की लहर पैदा हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सभी चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने पीसीबी के इस अमल पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि पीसीबी अपने मेडिकल स्टाफ को बेहतर बनाए और क्रिकेटर्स हमारे कौमी हीरो होते हैं। और पीसीबी के इस अमल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पीसीबी ने आज इख्तिलाफात की बुनियाद रख दी है। अब ये जब 10 प्लेयर ठीक होंगे और 20-25 दिन के बाद जब ये इंग्लैंड जाएंगे, इनको लगेगा ये कोई दूसरी मखलूक है और इनके साथ कुछ दूसरे दर्जे का सलूक हो रहा है। और जब ये जाके कौमी कैंप को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो है क्रिकेटर्स में इख्तिलाफात हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान उस्मानी साहब। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।